Welcome everyone to the very first episode of the OBF podcast, an IIT Patna original. This is a podcast of the students, by the students, and for the students. First of all, I hope all of you are safe and healthy and are having a good time at home with your family. During these unusual times of challenges, we all are faced with a big challenge of keeping connected with our friends and college life. But distances have always given us new ways to come closer to people. So, to burn the miles between us and to feel like one big connected family, we bring to you the OBF podcast. I am Vidya, your host for this series. Today, we'll be starting with a debut series, One Last Time, where we will be having some memorable conversations with the seniors from the graduate batch of 2021. This series is especially designed for our passing out seniors to go on a trip of nostalgia and give us a peek into their college lives. Also, this is an attempt to make IIT Patna a little more relatable for the first years who are eagerly looking forward to visiting the campus soon. But till then, let's look forward with hopes and prayers. So, beginning with our debut episode of the OBF podcast, we have with us our first guest of the series, Mr. Rahul Pandey, well known as Pandey Bhaiya in the college. Our guest today is truly one of the most influential seniors we've had the pleasure of knowing at IIT Patna, someone who has managed to balance his college life well between the co curriculars and academics, whilst being the best at whatever he puts his mind to. So, to end the wait, let me hand over the mic to him. Hi, Vidya. Thank you so much for inviting me for the first postcard. First of all, I would like to introduce myself. So, hi, I'm Rahul Pandey. Uh, I have recently graduated from IIT Patna. I was from Computer Science branch, and I'm also the vice president of the Student Gymkhana. So, that like more or less that's it about me. और बाकी नॉर्मल अगर बाकी अगर इनफॉर्मल से इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो लाइक विजय ने कहा आई एम वेल नोन एज पांडे भैया सो मोस्टली कई ऐसे कम लोग हैं जो राहुल से मुझे राहुल नाम को एड्रेस करते हैं मोस्टली लोग पांडे पंडेवा पंडित पांडे भैया और आजकल कई लोग वीपी भैया के नाम से भी एड्रेस करते हैं तो या लाइक फर्स्ट ईयर से ही मेरा कुछ ऐसा रहा है कि फर्स्ट ईयर में आते ही थोड़ा ऐसा लगा था कि एकेडमिक से थोड़ा नाता छूट सा गया तो धीरे धीरे वही कल्चरल कमिटीज में को मैंने ऐड किया काफी इन्फ्लुएंसर लोग थे कल्चरल कमिटीज में उस टाइम पे तो एक थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ जाता है हम जैसे लोगों को देखते हैं जिनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो आई ज्वाइन ड्रामेटिक क्लब एंड आई स्टार्ट वर्किंग इन अदर क्लब ऑल्सो कई फेस्ट के भी इंट्रो सेशन होते हैं तो वो देख के स्टार्टिंग में एक लगता है कि हाँ अब कॉलेज लाइफ थोड़ा बेटर हो रहा है अब ऐसा नहीं कि बस कॉलेज में हम पढ़ने आए हैं तो मेरे साथ कुछ ऐसा सीन था और धीरे धीरे काफी कुछ सीखने को मिला धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आगे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसको ट्राई किया और मैं ये कह सकता हूँ लाइक अभी मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ तो ये कह सकता हूँ कि पिछले 4 सालों में काफी इतने कुछ सीखने को मिला मुझे मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता मैं अगर कहीं और जा रहा हूँ तो मुझे सीखने को मिलेगा Wow, looking at everything that you've done while you were in college, one question that I really want to ask, and I'm sure everyone else listening to this would too, is there anything that you regret not doing while you were at campus, especially since most of your final year was online? Or are you content with your experience at IIT Patna? uh, I'm almost content with whatever I had in IIT Patna. Yeah, I wanted that. Like, fine, I wanted to spend my final year बट वो कोविड कारण हो नहीं पाया तो उसके लिए रिग्रेट करके क्या ही कर सकता हूँ तो अगर वैसा मैं सोचूं कि कुछ ऐसा करना था जो कॉलेज में और नहीं किया मैंने तो क्या ये था कि मतलब ये जैसे स्टार्टिंग में जब कॉलेज ज्वाइन करते तो होता है कि हाँ कॉलेज जाते ही एक बंदी बनानी है एक गर्लफ्रेंड रहेगी स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में हो नहीं पाया वैसा कुछ कोई सीन नहीं था लास्ट में मैंने ऐसा सोचा था कि हाँ एक बार ऐसा करना एडमिन बिल्डिंग जो काफी स्पेक्टेकुलर है सबको लगता है हम जब भी आईटी पटना का फोटो तो कोई एडमिन बिल्डिंग आ रहे हैं हर जगह एडमिन बिल्डिंग के चारों तीन चार तरह से एंगल से फोटो लिए तो ऐसा मेरा शौक था मैं एडमिन बिल्डिंग के सामने मुझे किस करना है इसलिए लिखेगा तो ये किया था एक रह गया और बाकी मतलब जो भी ट्राई करना था मैंने किया है कॉलेज में मतलब वैसे मेरे कोई ऐसा शौक नहीं थे नॉर्मल शौक थे लाइक मुझे ये एक्सप्लोर करना ये फील्ड एक्सप्लोर करना मुझे ये एक्सप्लोर करना मैंने किया वो जितना भी कॉलेज से मैं जो भी कुछ
सीख सकता था, मैंने ट्राई किया, सीख। Okay, now that's a goal for juniors. ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, बट आपने अब आइडिया दे दिया लोगों को एडमिन बिल्डिंग के सामने किस करने का. Okay, so the next question is, what was the one place that you spent your most time in the 4 years on campus? ये ऑब्वियसली तो हॉस्टल। जब स्टार्टिंग में आया था तो अपने कॉलेज में कुछ चीजें थी नहीं, हमारा कैंटीन था, एकेडमिक बिल्डिंग से, और हॉस्टल था, और स्पोर्ट्स ग्राउंड था। तो स्पोर्ट्स में मैं उतना एक्टिव रहा नहीं। फर्स्ट ईयर में 1-2 मंथ के लिए मैं जाता था, तो वॉलीबॉल खेला था मैं, और उसके बाद काफी हैक्टिक होता था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो मोस्टली हॉस्टल पे पड़े पड़े। और हॉस्टल में भी अगर बात करूँ तो कभी ऐसा था कि हमारा सेकेंड फ्लोर के ऊपर में एक छत सा है, तो वहाँ पे कई रात जाके बैठ जाते थे अपन। या फिर हॉस्टल में दूसरे फ्रेंड्स के रूम में, स्पेशली मेरा एक फ्रेंड अमित प्रियंका, मैं उसके रूम पे ज्यादा पढ़ा हूँ, अपने रूम में मैं नहीं रहा हूँ फिर भी। तो वही हॉस्टल में, और ज्यादा टाइम हुई है हॉस्टल नहीं। तो भैया जैसे आपने बोला कि आपका मैक्सिमम टाइम हॉस्टल में गया है, बट यू आर आल्सो वेरी एक्टिव इन सो मेनी प्लेसेस इन द कॉलेज. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा पार्ट है आईआईटी पटना का विच यू वुड लाइक टू रीनेम आफ्टर योरसेल्फ, ताकि मतलब आने वाली जनरेशन आप उस प्लेस को आपके नाम से याद रखें. ओके, हाँ। सो इसमें लाइक आई वाज नॉट मच एक्टिव इन एकेडमिक पार्ट, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि स्टूडेंट ब्लॉक या फिर एडमिन ब्लॉक, या फिर जो नया हमारा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, दैट वुड बी नेड आफ्टर मी। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। तो मैं ऐसा प्रेफर करूंगा कि जिमखाना बिल्डिंग, या फिर जो सैक बिल्डिंग बनने वाला है, या फिर इवन हमारे जो ऑडिटोरियम आने वाला है कुछ, तो वो मेरे नाम पे उनका नाम रखा जाए, तो ये थोड़ा बेटर होगा आई गेस। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अ, वो ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मान लो मेरे टाइम पे होती वो चीजें, ये सब जिमखाना बिल्डिंग जैसे अभी लास्ट लास्ट स्टेज में थी, और ऑडिटोरियम और सैक बिल्डिंग भी आने के बाद, तो वो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट रिलेटेड, तो वहाँ पे होते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कॉलेज का वहाँ पे स्पेंड करता हूँ हॉस्टल की जगह। तो मैं वो चाहूंगा। और वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाके खुद को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, कई चीजें सीखने को मिलता है। कॉलेज लाइफ में ये है कि हम बस पढ़ाई बुक से नहीं सीखते हैं, हम जो वहाँ पे और भी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे सीखने को मिलता है। तो वो थोड़ा बेटर होगा। ओके, सो द मोस्ट हस्टलिंग प्लेसेस ऑफ द कॉलेज, उनमें से कोई एक जगह पे आपको अपना नाम रखना है. हाँ, मगर ऐसा पॉसिबल है। Okay, cool. Now coming to a more serious part of the podcast. सीरियस Yes. आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोग एक्चुअली सुनना चाहते हैं फॉर देयर करियर्स. Okay. तो मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years आफ्टर कॉलेज. Okay, so right now I have two options. Like I have offers from Goldman Sachs and Microsoft. So मैं इनमें से कोई एक ज्वाइन करूंगा, और फॉर द टाइम बिंग ऐसा है कि जितने भी टाइम है मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी क्वांट फॉर्म में मिलूँ। तो देखता हूँ, मतलब कम चांस है क्योंकि बहुत दिन से मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करूँ। तो अभी जो भी मैं कंपनी ज्वाइन करता हूँ वो ये रहेगा कि स्टार्टिंग को जो पे काम करके मैं थोड़ा पैसे अच्छे से, जितना भी पैसा मैक्सिमम जितना मैं दे सकता हूँ उतना करना है मुझे। और फिर ये जैसे कॉलेज में भी मेरा ज्यादा इंटीग्रेशन रहा टुवर्ड्स मैनेजमेंट पार्ट, तो ये हो सकता है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 2 or 3 years आई गो फॉर एन एमबीए। तो वही स्टार्टिंग में 4-5 साल का ये प्लान, जितना पैसा है वो करूँ, और फिर एमबीए में भी। और ये भी पॉसिबल है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा, तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ। ओके, सो रिलेटेड टू दिस, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, जैसे गोल्डमैन सैक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट आर सम पीपल्स ड्रीम कंपनीज, एंड Yeah. आपको उन दोनों से ऑफर मिल चुका है. तो ये मोस्टली आपने कोडिंग वगैरह किया होगा, आपका इंटरव्यू रहा होगा. तो क्या आप हमारे करना जूनियर्स को बताना चाहते हैं कि क्या क्या आपने किया दैट गिव यू अ प्लेस इन दीस टू कंपनीज. ओके, सो लाइक जितने भी सॉफ्टवेयर रोल के लिए कंपनी होती है, दे रिक्वायर लाइक कोडिंग पार्ट इज मैंडेटरी, तो कोडिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। तो आप जब भी स्टार्ट करो, थिंग इज कि तुम कवर कर रहे हो सारे टॉपिक्स। तो कोडिंग में नॉर्मली तुम, ये प्रोसेस ऐसा होता है कि पहला राउंड आपका कोडिंग राउंड होगा ही, और कुछ कुछ कंपनीज में मे बी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हो, बट ये कोडिंग राउंड होगा उसके बाद, और फिर उसके बाद तू क्वालिफाई करते हो तो तुम्हें यू विल गेट अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरव्यू। तो कोडिंग राउंड के लिए और इवन इंटरव्यू में भी मोस्टली क्वेश्चन हमारे एल्गोरिथम डेटा सेट पे पूछे जाएंगे,
और फिर कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं कि सीएस फंडामेंटल से पूछ रहे हैं, नेटवर्क से, ओएस से, डेटाबेस से, या फिर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट जो तुमने कर रखा हो तो उससे पूछे जाए, या फिर हो सकता है या फिर जो भी तुमने कुछ किया हो अपने कॉलेज लाइफ में उससे पूछे जाए क्वेश्चन, ये होते हैं। या फिर कुछ कुछ कंपनियां होती है जो डिजाइन लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा रेयर होता है और उतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते तुमसे। लेकिन अगर उन्हें ऑप्शन मिल रहा है एक बच्चे डिजाइन लेवल का भी, डिजाइन की भी अंडरस्टैंडिंग हो, और एक जिसको नहीं है तो ऑब्वियसली उसको ले जाएंगे जिसको डिजाइन के अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐसा रिलेटेड काम करना हो, तो थोड़ा बेटर होता है अगर तुम्हें सिस्टम डिजाइन वगैरह कोई आइडिया होता है। मेरे केस में ऐसा था कि मैंने फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी। फर्स्ट सेमेस्टर मैं लैपटॉप ही लेना, मैं दिसंबर में लैपटॉप लिया, फिर मैं जनवरी में कोडिंग स्टार्ट की। फिर एनिमेशन के टाइम पे छूट गया, एनिमेशन में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था फर्स्ट टाइम एज ए वॉलंटियर, तो वो छूट गया था मेरा उस टाइम। और वो एक बार छूटने के बाद ऐसा, तो कोडिंग ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा करते रहना चाहिए, बीच में तुम छोड़ोगे तो वो छूटा ही रह जाएगा और काफी टाइम लगेगा फिर से तुम तो उस मूड में जाने जाके स्टार्ट करने के लिए। तो वो छूटा तो फिर मैंने समर में स्टार्ट किया, क्योंकि समर ऐसे जा रहा था, सुबह तो कुछ नहीं कर रहा था मैं, बस सोचा थोड़ा कोडिंग कर लेते हैं। तो मैं वहां पे स्टार्ट किया, फिर से कॉलेज खुले, और कॉलेज खुलने के बाद मैं मैथमेटिक्स का सब कोऑर्डिनेटर था, और फिर मतलब मैं सब कुछ देते, मैं 2-3 क्लब से सब कोऑर्डिनेटर था, तो उसके थोड़े काम होते थे, तो कोडिंग पे उतना और स्टार्टिंग में जैसे जूनियर्स आते हैं तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कल्चर कम्युनिटी वालों का। फिर फाइनली मैं जाके जनवरी में 2019 के जनवरी में स्टार्ट किया कोडिंग, और वहाँ पे मैं कोड फोर्सेस पे जो लैडर्स हैं A to Z के थ्रू वो मैंने किए। लगभग डी लैडर का 30-40 क्वेश्चन थे वहां पे किया मैं, अगर हर एक लैडर से 30-40-50 क्वेश्चन किया। और फिर कोड शेप पे भी कुछ कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने किए, और फिर वो सब करने के बाद मैं फाइनली मतलब समझ तक ऐसा हो गया था मई तक कि मैं वो सब कर लिया हूँ। और फिर उसके अलावा इंटरव्यू वेट मैं कर रहा हूँ, और भी इंटरव्यू वेट में मैंने अराउंड 80% मैंने किए थे इंटरव्यू वेट। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको लगता है कि हाँ मतलब क्वेश्चन आ रहा है तुम बना लोगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि तुम 1000 क्वेश्चन मत बनाओ, कई लोग होता है जो ऐसे 500-600 क्वेश्चन बना लिए और वो देख रहे हैं बस। अच्छे से तुम अगर एनालाइज करो तो 3 से 4 टॉपिक्स में ही तुमने कवर किए हैं, तो दैट इज नॉट ए राइट अप्रोच टू बी। राइट अप्रोच ये होगा कि तुम मे बी हर एक टॉपिक से तुम 20-20 क्वेश्चन बनाओ, और कम से कम तुमने 20 से 30 टॉपिक्स कवर कर लिए। तो ये इससे थोड़ा होगा कि हर एक टॉपिक से तुम कॉन्फिडेंस। मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैं एक मूवी मान लो 250-300 मैंने क्वेश्चंस करे हैं, और मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ बस एरे इम्प्लीमेंटेशन से या फिर मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स से क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने अराउंड 70% क्वेश्चन मेरा उतना ही। जो मेन एल्गोरिदम वाला क्वेश्चन है, मेन डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, वो मैंने बहुत ही कम बनाया, गिन चुन के बनाया। तो वो सही अप्रोच नहीं होता, तुम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुम्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो द राइट थिंग टू डू विल बी टू प्रिपेयर फ्रॉम लीड कोड और इंटरव्यू। मैंने लीड कोड नहीं किया था, मैंने इंटरव्यू भी किया था। मुझे वो ठीक ठाक लगा। तो मेरे केस में ऐसा था कि मैं बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो मेरे लिए वो सारे क्वेश्चन नए लग रहे थे। तो मेरे लिए सही था। कई लोग होते हैं जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए होता है कि वो क्वेश्चन ऐसा देखे हैं तो उनको नया चीज नहीं लगता उसमें, तो प्रेफर करते हैं लीड को, जहाँ पे बहुत ज्यादा राइट। तो आप कुछ भी करो सही है, बस वही है कि हर एक टॉपिक आप करो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बार वो कर लो तो सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा कि तुम प्रोजेक्ट तुम्हारे पास सही होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मेरे पास कुछ खास नहीं था सेकंड ईयर में, एक प्रोजेक्ट था। हमारा तो करिकुलम ऐसा है कि अगर कोई सीएस में है बंदा तो उसके पास प्रोजेक्ट, हमारे फर्स्ट ईयर में कोई ऐसा कोर्स नहीं है। हमारा जो पहला कोडिंग का कोर्स है वो सेकंड सेमेस्टर में, तो पहला सेमेस्टर ऐसे निकल जाता है। जिनको पहले से आती है वो करते हैं, या फिर क्लब्स में ज्वाइन करके लोग स्टार्ट करते हैं। और वही मैं आया था तो मुझे कल्चरल क्लब वाले ज्यादा थोड़े बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लगे, तो मैं थोड़ा कल्चरल साइड चला गया टेक्निकल से हट के। तो मेरा स्टार्टिंग में कोडिंग वोडिंग का कुछ था नहीं, तो वही मतलब धीरे धीरे बनाना पड़ता है। तो वही तुम स्टार्ट करो कोडिंग। तो प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। तो प्रोजेक्ट ऐसा है कि सेकंड ईयर में एक सीएस में कंपलसरी कोर्स है इनोवेशन लैब का। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि तुम कोई इनोवेटिव आइडिया लाओ, उस पर करो, या फिर कोई नया टॉपिक जो तुम नहीं जानते हो वो तुम सीखो और उसको प्रोजेक्ट। तो मैंने ऐसे एक मशीन लर्निंग एनएलपी से रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट किया था। बेसिक सा था लेकिन एकदम एक तरह से मैंने उसको ट्रीट किया है, मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटी टाइप को, तो उससे थोड़ा सीखने को मौका मिलता है। तो वो मैंने ट्राई किया था। एक ही प्रोजेक्ट था मेरे पास, और फिर सेकेंड ईयर के बाद और भी प्रोजेक्ट्स हुए, बट इंटर्नशिप के टाइम पे मेरे पास वही एक ही प्रोजेक्ट था। बट वही था कि मेरा जो प्रोजेक्ट मुझे अच्छे से आइडिया है, मैं खुद से किया हूँ। ग्रुप प्रोजेक्ट था, हम दोनों मिलकर अच्छे से किए थे, खुद से किए, तो हर चीज मुझे आइडिया। तो ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के लोग हैं और सीएस में काम कर रहे हैं वो भी खुद से कर सकते हैं। लाइक आप आपका जिस
तरफ भी आपका इंक्लिनेशन, अगर आपका इंडियन साइड हो या फिर डेवलपमेंट साइड हो, आप बैटिंग कर रहे हो, तो वैसे भी रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। और इससे ये होगा कि लाइक यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। और अब कुछ नहीं हो तो वो कुछ टफ क्वेश्चन करने लगेगा, या फिर उसे ऐसा लाइक इफ यू रियलाइजेस दैट यू आर नॉट गुड, दैट ही विल ऑब्वियसली आस्क सम टफ क्वेश्चंस, ताकि वो आप अच्छे से वो जज कर पाए आप। और ये इससे थोड़ा बेटर होता है कि आपके पास है, आपके प्रोजेक्ट है, आप इसमें डिस्कस कर रहे हो, वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो ही विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट दैट यू आर वेरी गुड एट, यू हैव ऑलरेडी डन इट, सो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। तो ये थोड़ा बेनिफिट मिलता है अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट हो और तुमने अच्छे से किया हो तो ये थोड़ा ये कर सकते हो। बाकी ये इंटर्नशिप के लिए अगर आप मेरा ऐसा था इंटर्नशिप मैंने किया गोल्डमैन सैक्स में, और फिर वहां से मुझे पीपीओ मिल गया, तो जो एक लंबा सा प्रोसेस चलता है हमारे यहाँ प्लेसमेंट का, मैं उससे थोड़ा बच गया। और नॉर्मली जो बच्चे करते प्रिपेयर करते हैं प्लेसमेंट के लिए, जिनको मान लो इंटर्नशिप से पीपीओ ना मिला या फिर कुछ इशू के कारण या फिर अलग से कर रहे हो, तो उनके लिए थोड़ा एक हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्लेसमेंट टाइम वो इंटरव्यू तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि इंटर्नशिप में उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता। वो बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है कि तुम अगर बेसिक कोडिंग कर ले रहे हो, तुम्हारे जो थॉट्स है, और इफ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट राइट इट डाउन इन योर कोड्स, तो वो तुम्हें ले लेगा। कुछ कंपनी ऐसी होती है, कुछ कंपनी जिनमें बहुत ज्यादा काम करना, वो पहले से देखेगा कि तुम ये चीज आता कि नहीं। लाइक मेरे केस में मुझे जिस टेक स्टैक में काम करना था, मुझे उनमें से एक भी नहीं आता था। मैं वहां जाके एक वीक में मैं सीखा, मैं जाके उस पर काम किया और अच्छा काम किया है, फाइनली मुझे पीपी मिला। तो ऐसे कई कंपनी करते हैं, वो बस देखते हैं किसी एक लैंग्वेज में तुम्हें तुम अच्छे से आता है, तुम कर ले रहे हो, वो सही देखते हैं, और तुम्हारा एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर सही है। अब लेकिन जॉब के टाइम बहुत ज्यादा करना पड़ता है तुम्हें, मे बी जो सिस्टम डिजाइन वगैरह भी करना पड़े, चीज फंडामेंटल तुम्हारा बहुत सही होता है। इंटर्नशिप के टाइम तुम कह सकते हो, वहां कर सकते हो कि अभी मैं जस्ट सेकंड ईयर कंप्लीट किया हूँ, बहुत कम कोर्सेज किए हैं हमारे। इवन हमारा जो डेटाबेस का कोर्स है हमारा थर्ड ईयर में होता है, बहुत सारे कॉलेज में डेटाबेस सेकंड ईयर, लेकिन हमारा थर्ड ईयर में होता है। तो उतना ज्यादा इंटरव्यू तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो, तो डेटाबेस डिजाइनिंग या फिर जो भी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, डेडलॉक या फिर जो भी है, उतना ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो। लेकिन हाँ, वो पूछते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं जो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, और वही अगर तुमने प्रिपेयर नहीं किया, सामने वाले ने प्रिपेयर कर लिया, तो उसे लगा कि वो थोड़ा ज्यादा मेहनती है, ज्यादा एफर्ट डाल रहा, तो उसको थोड़ा ऑब्वियसली उसको हायर करेंगे। और अगर मतलब बेसिक जो उसको चाहिए वो सब में बराबर हो, तो वो ज्यादा प्रेफर उसको करेगा जिसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो, ताकि उसको वहां जाके सीखने में ज्यादा टाइम, वो जल्दी थोड़ा उस माहौल में ढल जाए, वो जल्दी काम करना स्टार्ट कर दे, या फिर उसे काम में थोड़ी एफिशिएंसी हो। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं प्लेसमेंट में। वही सबसे ज्यादा मैं कि सब कुछ तुमसे एक्सपेक्ट करेगा तुम्हारा सब्जेक्ट सारे जितने भी कंपलसरी कोर्सेज हैं वो सारे हो गए हैं। तुम्हें ओएस आता है, तुम्हें नेटवर्क्स आता है, तुम्हें डेटाबेस आता है, तुम्हारी कोडिंग अच्छी है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कम से कम 2-3 हो गए हैं, फाइनली में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है तुमसे। इवन तुम उस टाइम पे अपनी बीटीपी कर रहे होगे, तो बीटीपी तुम्हारा कितना अच्छा, वो भी एक्सपेक्टेशन होता है। वो सिस्टम डिजाइन लेवल पे भी करते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट में, या फिर उस लेवल पे डिजाइनिंग करते हैं हम, तो वो सब भी, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसी नहीं होना चाहिए कि तुम नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किए हो, तो उतना एक्सपेक्टेशन होता है। तो मेरे लिए ये थोड़ा बेनिफिट था, मैं थोड़ा बच गया तुमसे। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स है जो उस प्रोसेस के थ्रू गया, वो बताते हैं कि कितना टफ होता है वो। तो ये जरूरी है कि मतलब खुद को रेडी रखो, और तुम्हारे पास टाइम है, तुम आपको रेडी रखो खुद को। बेसिक यही है, तुम कोडिंग अपनी अच्छी रखो, प्रोजेक्ट तुम्हारे पास अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि तुमने प्रोजेक्ट छाप के रख लिया और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में, वैसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मे भी एक ही प्रोजेक्ट हो, लेकिन ढंग का थोड़ा प्रोजेक्ट तुम वो अच्छे से मालूम, वो बस देखते हैं कि तुम जो सोच रहे हो तुम उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, बस उनका एक छोटा सा ही क्राइटेरिया है, बस तुम उसको फुलफिल करो, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, तो मतलब अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, देन स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट एंड कीप एक्सप्लोरिंग। या तो वही प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पहले से श्योर हो कि तुम्हें ये करना है, तुम प्रैक्टिस छोड़ो नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, वो थोड़ा काफी काम आएगा वो तुम्हारे लिए। भैया जैसे आपने इंटरव्यूज दिए एंड आपका सिलेक्शन हुआ, एंड क्योंकि मैंने ऐसे सुना हुआ है कि योर पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट व्हेन यू गो फॉर सीकिंग अ जॉब। इवन इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में ऐसा होता है, प्लेसमेंट टाइम्स में ऐसा होता है। तो व्हाट इज योर व्यू कि आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है 4 साल या 3 साल कॉलेज में, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है आपके इंटरव्यूज पे? सी कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है, जैसे स्पेशली अगर स्टार्टअप्स की बात करूं, उन्हें बस काम से मतलब है। तुम अगर काम कर रहे हो अच्छे से, मतलब तुम्हें आता है और तुम कर ले रहे हो, और तुम्हारे पास अच्छे से मतलब तुम अपना टाइम डिवोट कर सकते हो, तो वो कर लेंगे, क्योंकि उन्हें बस काम से मतलब है। उनसे तुम जितना तुम्हें काम नहीं छोड़ना, तुम्हें नहीं छोड़ना। तो कुछ ऐसे कंपनी होते हैं, कोई कंपनी ऐसे होते हैं जो तुम्हें मतलब तुम
एक बेसिक क्राइटेरिया उनका कोडिंग आना चाहिए, वो सब है। उसके अलावा भी वो देखते हैं, मालूम उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, स्पेशली कुछ बड़े बड़े फॉर्म्स है, तो वो देखते हैं तुम पर्सनालिटी वाइज कैसे हो, क्योंकि उससे बहुत कुछ मैटर करता है। तो मेरे साथ ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा मैंने पढ़ा भी है गोल्डमैन सैक्स के बारे में, थोड़ा वो ऐसा लेते हैं, तो इन चीजों को कंसिडर करते हैं। गोल्डमैन सैक्स हो गया या फिर जितने भी ऐसे फॉर्म्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप की जितने भी फॉर्म्स है, कंसल्टिंग फॉर्म है, तो मे बी वो कोर फाइनेंस रोल के लिए या फिर कोर कंसल्टिंग कंसल्टिंग रोल के ना ले रहे हो, फिर भी वो देखते हैं ये सब चीजों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे इंटरव्यू में इन चीजों पर डिस्कस हुआ था कि एक इंटरव्यूअर, दो तीन इंटरव्यू राउंड हुए थे, तो एक के साथ मेरा डिस्कस हुआ था, लाइक मैं मेरे एनडीए क्लियर हुआ था, नेशनल डिफेंस, तो मैंने सीवी पे ऐसे एक लाइन लिख दिया था कि एसएसबी मेरा क्लियर हुआ है और ऑल इंडिया 38 आया, तो उसने उस पर डिस्कस किया, तो मैं उसके बारे में बताया, तो आई थिंक उसका थोड़ा एक इफेक्ट पड़ा होगा कि मैं मतलब जो भी उसने क्वेश्चन किया तो एल्गोरिथम के टेस्ट मैं वो बता दिया, लेकिन फिर भी उसके साथ भी एक पैरेलली एक इसका इफेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा तो गया हो कि हाँ इसने कुछ किया है, लेकिन कुछ पोटेंशियल है इसमें, थोड़ा ये जाता फैक्टर। और दूसरे इंटरव्यू के साथ अ, अ, मतलब वो उस इंटरव्यू राउंड में मतलब मोस्टली पजल्स वगैरह पूछे गए थे, पजल्स और एक बेसिक प्रोजेक्ट हुआ था और सीवी से, तो उसने मेरे सीवी पे यही मेंशन था कि मैं इंडियन यूथ डेलीगेशन का पार्ट रहा था 2019 का जो इंडियन यूथ डेलीगेशन तो चाइना था, मैं उसका पार्ट था, लाइक अराउंड 170 मेंबर का, तो मैंने वो सब लिखा उसके बारे में, तो उसने उस पर डिस्कस किया था। तो उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका बेसिस क्या था जाने का, तो वही एकेडमिक्स एकेडमिक्स और जो तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होते हैं मोस्टली, मतलब सीपीआई, तो उस टाइम मेरी सीपीआई काफी अच्छी थी जब सिलेक्शन हुआ था, तो वो सब मैटर करता है, तो उसने पूछा उसके बारे में, तो वो थोड़ा इफेक्ट पड़ता है उसका। भले वो एकदम उसका जजिंग क्राइटेरिया ना हो, लेकिन वही बात है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, और उसके बाद उसको पूछ करता हो, मान लो उसके पास लिमिटेशन है, 4 लोगों को ही ले जाना हो, तो उसके बाद कुछ कुछ और फैक्टर तू लगाएगा वहां से, तो अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा हो तो थोड़ा काम आ सकता है। ओके, तो आपने कॉलेज में जितना फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आपने जितना को करिकुलर्स में काम किया, जितना आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई, उसका श्योरली फर्क पड़ा, मतलब या फर्क पड़ा। so we are like the coming next is one of the most awaited questions, तो बहुत लोग कॉलेज के जानना चाहते हैं। So the question is कि even though you knew that आपका जो tenure होगा as a VP वो सिर्फ 3 months तक चलेगा, still why did you choose to become like contest for the elections? What was your vision behind becoming the VP even if for 3 months? ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब लोग हमेशा पूछते रहे, स्पेशली जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाला था, तो कई लोगों ने मुझसे ऐसा पूछा। तो और ये ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में जब अपन आते हैं तो ओरिएंटेशन होता है, तो वहाँ पे वीपी का भी एड्रेस होता है, तो हमारे टाइम पे वीपी में भी भैया थे वीपी उस टाइम पे, तो उनका हुआ था, तो उस टाइम पे पता नहीं चला था कि वो स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे लगा था कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। फिर बाद में जब हमारा इंटरव्यू सेशन होता है फर्स्ट इंडक्शन के टाइम पे कल्चरल कमेटी के साथ, तो उस टाइम पे आए थे वीपी आए थे, यूजीआर आए थे और एक दो सेक्रेटरी आए थे, तो वो आए ऐसे एक दो क्वेश्चन किए उन्होंने, कैसा चल रहा था कुछ ऐसा, और वो वापस चले गए। फिर उसके बाद जो सीनियर थे हमारे सेकेंड थर्ड ईयर वाले, उन्होंने बताया कि वो वीपी थे, वीपी क्या होता है, जिम खाना क्या होता है, कैसे काम होता है, ऐसा बताया उन्होंने। तो उस टाइम पे लगा कि यार अगर ऐसा है और कोई ऐसा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो मुझे वो बनना है। ऐसा मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूंगा अपने फाइनल ईयर में कि मुझे भी वीपी बनना है। तो ये धीरे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बहुत सारे क्लब्स में काम किया, और वीपी के साथ भी जो विपिन भैया थे उनके साथ भी इंडायरेक्टली मैंने काम किया, किसी उनके किसी सेक्रेटरी के अंदर होके। या फिर जब सेकंड ईयर में आया तो हमारे जो आशीष राज भैया थे वीपी, उनके साथ मैंने काम किया डायरेक्टली कई जगह पे। फिर जब सेक्रेटरी हुआ तब भी काम किया, तो धीरे धीरे वो लगता है कि हाँ तुम धीरे धीरे समझोगे काम क्या है, कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन आईटी पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है, और क्या मैं वो काम कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर तुम्हें ऐसा कोई दिख रहा है कि जो तुमसे बेटर कर सकता है वो काम, जिसको ज्यादा आइडिया हो, तो उससे थोड़ा लगता है कि हाँ मैं बन सकता हूँ, और लोगों का सपोर्ट है, बन सकता हूँ, और पोटेंशियल है, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं कर पाऊँ कि नहीं हो पाऊँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ कि नहीं, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कि भी वाइस प्रेसिडेंट, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बस सपोर्ट है तो मैं बनता हूँ, उससे इम्पोर्टेंट है कि मैं कुछ कर पाऊँ कि नहीं। तो मैंने सोचा कि हाँ इवन मैं, तो ये सब फैक्टर थे जो जिससे ये था कि हाँ मुझे भी करना। लेकिन जब वो हुआ लॉकडाउन हुआ तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था उस टाइम पे, और कोई ऐसा सीन नहीं दिख रहा था। हमारे जो उस टाइम के वीपी थे ज्ञान भैया, उनका भी टेन्योर अलाउ जुलाई तक एक्सटेंड किया गया था,
तो उस टाइम पे मैंने प्रपोज किया था, हमारा जो जिमखाना ग्रुप था उस टाइम पे, उसमें मैंने प्रपोज किया था कि एक प्रोविजनल जिमखाना बनाया जाए जिसमें सारे एटलीस्ट सारे सेक्रेटरीज और वीपी यूजीआर पीजीआर को नॉमिनेट करके जब तक इलेक्शन नहीं हो वो बन जाए, वो छुट्टी मिल जाए। तो वैसा प्लान था कि जो बनेगी प्रोविजनल जिमखाना वो उनका ये काम होगा कि अ, दो काम रहेगा, पहला इलेक्शन कराना, दूसरा काम ये कि अगर बीच में जो भी डिसीजन हो रहे हैं कॉलेज लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ले जा रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिसीजन ले जा रहा है जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट पे। और उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि डिसाइड किया था हमेशा कि कैसे कॉलेज खोलना है, तो वहां पे कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव था नहीं वहाँ, तो इम्पोर्टेंट था वहाँ पे कोई ना कोई हो, तो इसलिए मैंने प्रपोज किया था जी। तो फाइनली मतलब डीन के पास मैं मेल भी किया था कि सर बाकी सीजन से और यूजीआर का भी होना चाहिए, तो सर ने बोला कि बाद में मतलब करते हैं। तो तो ठीक है, मेरा मैं उस टाइम पे मैं नॉमिनेशन में खुद का नाम नहीं भेजा। मेरा ये रीजन था कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेन टास्क वही है मेरा बनने के बाद कि मुझे इलेक्शन कराना है विद इन अ मंथ, जैसे भी कराऊं। ये टास्क सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि होना चाहिए कि लोग जो स्टूडेंट जिसको इलेक्ट करके भेज रहे हूँ वो वहां पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं बीइंग वीपी नॉमिनेटेड वीपी, मैं खुद के इलेक्शन के लिए मतलब मैं इलेक्शन प्लान कर रहा हूँ सब कुछ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं खुद से एक उसमें कैंडिडेट रहूंगा, तो ना यहाँ पे सिर्फ पार्शियलिटी का बात आ जाता है। तो वैसे कई लोग सवाल उठाते हैं उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं अवॉइड कर देता हूँ अभी, 1 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है, तो मैं उस टाइम कंटेस्ट कर जाऊंगा और उससे कहीं प्रॉब्लम आ रहा है 1 मंथ और। तो मैंने ये सोचा था, फिर धीरे धीरे वही कि सितंबर से वो खींचते 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 जनवरी तक आ गया, और जनवरी में फाइनल जाके नोटिफिकेशन इलेक्शन का, तो वो थोड़ा डिले हुआ। तो उस टाइम पे मैंने वही सोचा था कि काफी डिले हो गए, तो मैं उस टाइम डाउट में था मैं उठूं कि ना उठूं। तो फिर वही मैंने सोचा कि जैसा अभी का जैसा चल रहा है मतलब से सितंबर पर कुछ बेटर किया जा सकता है, या फिर कई सारे चीज थे जो करने थे, कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें अब तक नहीं हो पाई, बट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस तो मुझे लगा तो मैं इसलिए ओके सो भैया जैसे कि आप जानते हैं कि 3 मंथ के टेन्योर में भी ऑल दो स्टूडेंट्स नहीं थे कॉलेज कैंपस में, बहुत कम लोग थे, बट द बिगेस्ट चैलेंज एट हैंड फॉर यू वाज द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस इन द कैंपस। तो वो चैलेंज आपने कैसे हैंडल किया, बिकॉज नंबर्स बढ़ रहे थे कैंपस में एंड कॉलेज फिर बंद करने के भी चांसेस थे। सो एज अ वीपी हाउ डिड यू डील विद इट? मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। लाइक होली के जस्ट बाद कुछ लोगों की फीवर मतलब नॉर्मली कुछ ना कुछ बच्चे जाते थे हॉस्पिटल चेकअप कराते थे, और होली के जस्ट बाद मेरे बैच के 2 बंदे थे फाइनल ईयर के, उनको थोड़ा फीवर हुआ, और फीवर होने के बाद वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल ने टेस्ट रिकमेंड नहीं किया कि कोविड का टेस्ट करो, वो आके आ गए, लेकिन वो उन्हें लग रहा था कि मे बी कोविड के सिम्टम्स है, क्योंकि अगर तुम्हें फीवर है, हल्की खांसी है, बॉडी पे है, तो वो बोल रहे थे टेस्ट करा लेते एक बार। तो लेकिन हॉस्पिटल रिकमेंड नहीं कर रहा था, हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आप जाके खुद से एनएफएमसीएच में जाकर टेस्ट करा लो। तो उनके फ्लोर वाले मुझे पता है कि ऐसा इशू है, तो ये थोड़ा अटेंड करो, तो मैंने बात किया, तो हमारे पीआईसी मेडिकल से बात की कि सर टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, और टेस्ट हो रहा है तो आपको अरेंज कराना पड़ेगा एम्बुलेंस, आपको अरेंज कराना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने अरेंज कराया, टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट का रिपोर्ट आया नेगेटिव, हमारे कॉलेज में 2 केसेज हैं कोविड के। तो वो काफी टेंशन था। उसके पहले हमारे कैंपस में सितंबर के अराउंड या फिर बहुत पहले कोविड केसेस आए थे, तो उस टाइम तो बहुत ही ऐसा था कि पूरे हॉस्टल सबका काफी कम लोग थे, बस रिसर्च स्कॉलर्स थे उस टाइम पे, और सबके खाने रूम पे पहुंचाया जा रहा था, तो काफी प्रिकॉशन लिए गए थे उस टाइम पे। और अभी था कि उस टाइम पे और इस टाइम पे हमारे स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी पहले के मुताबिक, हमारे पास स्ट्रेंथ अराउंड 700 to 800 था। तो ये थोड़ा इसको चेक करना काफी मुश्किल था पहले के कंपैरिजन में। तो हमने ऐसा थोड़ा प्लान किया, क्या किया, तो मीटिंग्स भी हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में मीटिंग हुई, मैंने एक ही सोचा कि ऐसा करते हैं कि हॉस्पिटल से खोल मतलब ये चांस लिया हमने कि होली हुई है, होली में ऐसे मतलब ऑल्दो काफी कम इंटरेक्शन हुआ था बच्चों का, लेकिन अगर स्कूल पे भी हो रहा है, लोग होली खेल रहे हैं, तो उससे इससे भी चांस हो सकता है कि उससे भी फैलने का एक जरिया हो सकता हो। तो मैंने ऐसा किया, हॉस्पिटल से सारा लिस्ट मिला है कि आप ऐसा कर दीजिए कि होली के 1 दिन पहले से आप सारा लिस्ट भेज दीजिए जितने भी लोग हॉस्पिटल विजिट किए। तो अराउंड उन्होंने काफी काफी बड़ी एक लिस्ट भेजी, हर एक दिन काफी लगभग 20 25 30 40 50 लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल। तो उसमें हमने ऐसा किया, सेग्रीगेट किया कि इतने ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड के सिम्टम्स हैं, तो हमने वैसे 52 लोगों का नाम अलग से शॉर्टलिस्ट किया। तो हमारा प्लान ऐसा था कि हम इनका टेस्टिंग कराएंगे,
और सबसे पहले ये कराया हमने कि जो भी जो कोविड पॉजिटिव थे उनके जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट थे उनके फ्लोर वाले या फिर जो उनके रूम पे आते जाते हैं उनका हमने टेस्टिंग कराया अगले दिन। और फिर सब्सिक्वेंटली हम लोग ये जो 52 लोग थे उनके टेस्टिंग कराने के लिए हमने प्लान कर रहे थे कि एसएमसीएच से टीम आई थी। फिर फाइनली धीरे धीरे बीटा की मेडिकल टीम से बात हुई हमारे बीएससी मेडिकल की और उन्होंने अरेंज किया वहाँ से मास टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग हो रहे थे और डेली कुछ लोग कोविड पॉजिटिव आ ही रहते हैं। वो धीरे धीरे केस बढ़ता गया, पहले 2 फिर नेक्स्ट डे 6-7 आ गए उसी सेम फ्लोर से। फिर पता चला डी ब्लॉक में से भी कुछ केसेस आ रहे हैं और डी ब्लॉक से और भी बढ़ते गए। तो ऐसा था लेकिन कोई भी ऐसा सीरियस नहीं था स्टार्टिंग में। तो हमारा ऐसा था कि ठीक है हो जा रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। कई ऐसे थे जो असिम्टोमेटिक थे, कोई भी सिम्टम नहीं है लेकिन उनका कोविड पॉजिटिव है। और कई ऐसे भी थे जिनका कोविड निगेटिव आ गया लेकिन उनमें सिम्टम्स थे। तो हम लोग ये भी ट्राई कर रहे थे कि सेम टाइम पे अगर हम कोविड पॉजिटिव वालों को अलग कंटेनमेंट जोन हमने एक बी ब्लॉक में कंटेनमेंट जोन का सेट कर दिया था और सारे कोविड पॉजिटिव को हम बी ब्लॉक के फिफ्थ पे रखे थे और ए ब्लॉक का फिफ्थ जहाँ पे मैक्सिमम कोविड पॉजिटिव निकले थे उस टाइम पे वहाँ पे रखे थे। तो वहां से जो भी निगेटिव आया था उनको भी हम अलग से सेग्रीगेट कर रहे थे। तो उनमें भी हो सकता है कि कौन सी निगेटिव, क्योंकि तुम देखो हमारा कुछ ऐसे रिपोर्ट्स थे कुछ साइंटिफिक जर्नल्स के जहाँ पे ऐसा था कि अराउंड 20% फॉल्स निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट दे रही है। तो ये भी हमें इसे ये भी कंसिडर करना था। तो हम लोग वो भी करते थे थोड़ा सा भी सिम्टम हो या फिर जिसका निगेटिव हो लेकिन मैं सिम्टम को उनको अलग से करते रहते और उन्हें हम ऐसा कर रहे थे कि वो उनका खाना उनके रूम के पहुंचे। ये सब ट्राई कर रहे थे हम और धीरे धीरे काफी सही हो रहा था। हमारा ऐसा स्टैंड था कि हमें कैंपस बंद ही करना है और डिफरेंट मीटिंग्स होते थे टास्क फोर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो हाईएस्ट बॉडी है जो कोविड रिलेटेड सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। तो वहां पे डिस्कस होता था। वहां पे ऐसे मतलब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई ऐसा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है लेकिन हम डीन से बात करके हम भी मीटिंग्स में जाते थे और अपने पॉइंट्स रखते थे। तो हमारा स्टैंड क्लियर था कि कॉलेज बंद नहीं करनी है और सिचुएशन वैसे कंट्रोल में ही था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होने लगा था, रियलाइज होना था कि केसेस बढ़ रहे हैं और ये भी होता ना मतलब कई लोगों को लगता है कि नहीं मुझे नहीं होगा या फिर मुझे अगर फीवर हुआ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये एक थोड़ा सेंस बनता है कि लोग जानबूझ के प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। तो ऐसे और जब मैं कॉलेज वापस गया तो मैं भी देखा मतलब कई लोग ऐसे तो मतलब मास्क नहीं लगा रहे हैं। किसी ने बोला, किसी एक प्रोफेसर ने बोला कि मैं देख रहा हूँ मात्र 2 लोगों को जो ज्यादा मास्क लगा रहे हैं, एक राहुल पांडे लगा रहा है मास्क और एक हमारे जो डीन स्टूडेंट अफेयर था वो मास्क लगाते हैं हमेशा। तो तो ये तो और कई बार ऐसा हुआ कि मैं मास्क लगा के जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं भाई दिन रात मास्क लगाया रहता है, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो वैसे प्रिकॉशंस लोग सीरियसली ले नहीं रहते। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जो कॉलेज में आउटबर्स्ट हुआ कोविड का, एक रीजन हो सकता है प्रिकॉशन बहुत कम लोग ले रहे थे। और दूसरी बात ये होता है ना कॉन्फिडेंस होता है लोगों में कि हाँ मुझे नहीं है या फिर मुझे हुआ तो मैं फिट हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा तुरंत 2-3 दिनों में। तो ये एक थोड़ा सा अलग सा सेंस आ जाता है लोगों में। तो ये थोड़ी गलती होती है। तो इस कारण से जो भी केसेस आए वो हुए और हम लोग ऐसा मतलब ये फिगर आउट करने की भी जरूरत नहीं कि कोविड केस कौन लाया। तो वैसा कोई ब्लेम गेम करने की जरूरत नहीं है। बट ये होता है कि कहीं से भी आता बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। मे बी कोई स्टूडेंट बाहर से आया उसने अच्छे से क्वारंटाइन फॉलो नहीं किया या फिर हो सकता है कोई बाहर से हमारा वेंडर आ रहा वो आके भी खाना खा लिया। बहुत चीजें बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। कोई प्रोफेसर बाहर से आया वो उसे प्रोफेसर अपने घर गए वापस आए और उसकी मीटिंग्स लिए वहां से हो सकता है। तो बहुत सारे चांसेस हैं। तो धीरे धीरे मतलब सब कुछ हैंडल तो क्या सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहा था, सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर भाई बहुत सारे आईटीज बंद हो रहे थे। तो सेम टाइम पे हमने हमारे इवन हमारा तो डायरेक्टर है आईटी बीच में डायरेक्टर, तो वहाँ पे आईटी बीच में बंद हो चुका था। बट सिर्फ बंद होने के बाद हमारी एक मीटिंग हुई थी टास्क फोर्स की जहाँ पे हमने वही डिसाइड हुआ था कि नहीं बंद नहीं होना है क्योंकि धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लोग काफी जल्दी ठीक हो रहे थे। ऐसा होता है और आज पॉजिटिव हम टेस्टिंग करा रहे थे रेगुलर, मे भी हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव भी आया हो। तो ये हम फिर टेस्टिंग करा रहे थे तो धीरे धीरे वो निगेटिव होते जा रहे थे और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखा था। एक दो जो थोड़े से सीरियस हो रहे थे हम उनको जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। और फिर जैसे कुछ लोग सीरियस हुए तो उन्हें हम वहाँ पे सीएच भी शिफ्ट किए। अब बीच में ऐसा हुआ कि जो हमारा जनरल सेक्रेटरी था हॉस्टल अफेयर्स का अतुल, जो मेरा फ्रेंड, तो मैं उसके रूम पे काफी ज्यादा आता रहता था। तो उसे भी कोविड पॉजिटिव हुआ और जिस दिन उसका रिजल्ट आया मैं सेम डे उसके रूम पे बैठा था। तो मुझे भी एक अंदर से लग रहा था कि हाँ मुझे भी हो सकता है। और एक चीज ऐसा पता नहीं है थोड़ा साइकोलॉजिकल है या फिर पता नहीं क्या क्या इशू, अगर आपको लगे कि हाँ आपको है तो अंदर से आप थोड़ा फील करने लगते हो थर्ड फीवर जैसा। तो मुझे भी अंदर अंदर फील हो रहा था। मैं भी ये सोचता था कि मुझे जैसे दिसंबर में पहले कोविड हो चुका था तो ये हो सकता है ये पॉसिबल है कि
अब बाद में अगर कोविड से मतलब अगर अगर बीच कोविड मेरे बॉडी में एंटर कर रही है तो होता हमारे हमारे इम्यून सिस्टम से फाइट कर रहा है, तो उसके कारण थोड़ा मुझे भी एक दो बार फीवर हुआ था बीच में, बट वही नॉर्मल था। मैंने भी टेस्ट करा है, तो वो ड्यूरेशन में मतलब 10-15 दिन के ड्यूरेशन में मैंने 2 बार टेस्ट करा है, तो दोनों बार निगेटिव आया। अ, सबसे गलत चीज ये लगा कि जैसे एक दो जूनियर्स थे जो काफी क्लोज है मेरे, तो उनके घर पे मतलब वो घर पे ही है, और ऐसा हुआ कि उनसे बात होती थी, तो वो बताया कि घर पे तबीयत खराब अब उनकी फैमिली की है। फिर कुछ दिन बाद पता चला लाइक कि उसके पेरेंट में किसी का डेथ हो गया। तो ऐसा लगा मतलब अ, वो मोमेंट जो था मतलब ऐसा मेरे लिए वो जो भी डिविजन था स्टार्टिंग मतलब जब इससे केस हुआ और जब तक कॉलेज बन गया तब तक का वो मतलब डिविजन मेरे 4 साल का सबसे वो हार्डेस्ट पार्ट था। मतलब ऐसा दिन भर हम उसी में खोए हुए हैं, और हमारे खाना से भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया। इवन मैं पीजी कम्युनिटी से जितना सपोर्ट मिला आज, तो मैंने मुझे नहीं लगता मतलब आगे जब खाना होगा ऐसा सपोर्ट मिलना है पीजी कम्युनिटी से। जितने भी सेक्रेटरीज थे पीएचडी के मास्टर्स के, स्पेशली हमारे पीजीआर, तो उनका जितना सपोर्ट मिला इसमें कोविड को हैंडल करने में काफी ज्यादा था। तो वो जो मोमेंट था मतलब स्टार्टिंग अप्रैल से लेके जब तक कॉलेज में काफी ऐसा हुआ, तो जितना उस ड्यूरेशन में जितना बार मेरा ब्रेकडाउन हो उतना पिछले 4 साल में कभी हुआ नहीं ऐसा। डेली मतलब एक मोमेंट ऐसा था, डेली सुन रहा हूँ कहीं ना कहीं से ऐसा किसी न किसी का डेथ का ऐसा न्यूज मिल रहा है, और कोई ऐसा कि जो बहुत ज्यादा क्लोज है उसके फैमिली में डेथ हो रहा है, तो वो काफी मुश्किल होता है। और एक सबसे एक्सटेंड ये हुआ कि एक बार मेरे पास एक कॉल आया, मुझे पता चला एक स्टूडेंट है मेरा बैचमेट है, उसके घर में उसके फादर का डेथ हुआ है। और फिर मुझे मालूम है, अब तक उसे नहीं मालूम है, मुझे बताया कि मैं फॉर्मेलिटी कर दूं कि उसको कॉलेज से बाहर जाने के मिल जाए, परमिशन सब कुछ मिल जाए, क्योंकि कॉलेज से बाहर जाना अलाउड नहीं था उस टाइम पे, हमारा मिनी कंटेनमेंट जोन था। तो मुझे फॉर्मेलिटी मैं कर दूं वो सब, और मैं उसको बताऊं नहीं कि ऐसा हुआ है, बस मैं उसको बस बोल दूं कि तबीयत खराब है, तुम बस रेडी हो जाना चाहिए। तो वो ऐसे मोमेंट थे मतलब जो काफी मुश्किल थे, जब मतलब मैं उसको फेस कर रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ, मुझे पहले से मालूम है कि उसके घर में डेथ हुआ है, उसे नहीं मालूम है। तो ऐसे ऐसे का मोमेंट है जब मतलब एकदम कंप्लीटली एकदम ब्रेकडाउन हुआ। लिटरली मैं एक दो बार रोया उन दिनों में। और ये बस मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ, मतलब मैं कई लोग हम मेरी बात होती है तो वो भी कई ऐसे मोमेंट हुए हैं। और सबसे मुश्किल ऐसा हुआ कि जब हमारे कैंपस के जो पीएचडी के थे हमारे सीनियर फाइनल ईयर के पीएचडी में, तो हम काफी ट्राई किए, उनकी हालत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटल पहले उनकी टेस्ट में निगेटिव रिपोर्ट आई थी, फिर जब पॉजिटिव उन्हें जल्दी शिफ्ट किया गया, उनकी हालत खराब हुई, कई दिनों तक आईसीयू में रहे। फिर वही क्रिटिकल थे, फिर हमें एक दिन न्यूज आया कि मतलब काफी ठीक हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, लेकिन वही हॉस्पिटल कुछ और कह रहा था, उनके पेरेंट्स कुछ और कर रहे हैं, काफी अलग अलग व्यूज थे। फिर एक दिन मैं सुबह उठा, कॉल आया, तो हमारे पीजीआर उनके बारे में बताते हैं कि लाइक ही इज डेड। तो वही मतलब ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप वो मतलब ऐसा हो कि आप जो आप फील कर रहे हो, जो आपके इमोशन आप आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको और भी चीजें देखनी है। Right. तो पूरा ड्यूरेशन कुछ वैसा था। हाँ वो So it was a tough time, a very tough time for you. या मैं अगर बोलूँ कॉलेज में जो भी जितने भी लोग आए हुए हैं कॉलेज में, ठीक है, बहुत सारे मतलब एकेडमिक प्रेशर आया, फेस का प्रेशर आया, कुछ भी प्रेशर आया, तो वैसा प्रेशर मतलब मैंने हैंडल नहीं किया था कॉलेज लाइफ में, जो वो टाइम रहा आपने हमारे। वो बहुत अच्छे से हैंडल किया भैया। एंड और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी भैया, नाउ दैट सो मेनी पीपल आर लिसनिंग टू अस, हमारे कॉलेज ने उन पीजी वाले भैया के लिए क्राउड फंडिंग की, एंड मेनी पीपल contributed their share towards it. And though we couldn't save his life, but it was a great gesture from everyone who came forward and gave some money and also prayed for him. तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं भैया? Yeah, obviously. Uh, so everyone who contributed to the crowdfunding and who did their part in any way, like by publicizing the crowdfunding link, और उनके लिए जो उन्होंने प्रे भी किया है, मेरा ऐसा मानना है कि प्रेयर दो, अब आपने अगर प्रे भी किया या फिर कुछ भी आपने कंट्रीब्यूट किया, या फिर आपने उनके बारे में थोड़ा सा भी सोचा, तो आई थैंक यू सो मच। अब ये हो सकता है कि जो हमने
कंट्रीब्यूट किया उनसे, जैसे मैंने शेयर किया है। This proves that even though we are going through such a tough time और हम लोगों को like पूरी दुनिया को इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, but we as a community can do so much by giving our little shares, even the tiniest shares that we give, the prayers that we do, and even the thought of people कि उनकी जान बच जाए, उनकी फैमिली वाले सही सलामत रहे. This means a lot, and such things are going to bring the world. And now that we are talking about IIT Patna, it is going to bring us closer, and this is going to end soon, and हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पर होंगे. We'll be at a better place than where we are now. Okay, Yeah. so coming to the next segment, थोड़ा आप मूड को चेंज करते हैं, and I hope you're Okay. okay now, भैया. Yeah. Okay. So we are moving to the next round, और वो है rapid fire round. तो मैं आपको Okay. कुछ सवाल पूछूंगी भैया, and आपको तुरंत उनके जवाब देने हैं. ठीक है, मैं ट्राई Okay, करूंगा। so starting with the first question, your first crush on campus. फर्स्ट क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। एक सीनियर थी थर्ड ईयर की, जो हमारा कल्चरल वाला इंडक्शन में जो इंट्रो हो रहा था उस टाइम। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर में ही मतलब. हाँ, Okay, okay, ठीक है, cool. Okay, your favorite dish from the mess. आजकल रिसेंटली फ्राइड चिकन बनाता था, रोस्टेड चिकन, तो वो थोड़ा मैं मिस से सबसे बेस्ट है। उसके अलावा कुछ Okay. वैसा खास है नहीं। I was expecting nothing, but ठीक है, आपने एक कुछ तो बता दिया. That's good. Okay, the next question. In your opinion, the best makeout spot in the campus? जब अपन आया था फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे प्लेसेस थे, चारों तरफ जंगल थे, बहुत सारे पेड़ हैं। अभी थोड़े कम है, बट भी अभी के मोमेंट में बताऊं तो कई नए रोड्स बने हैं जहाँ पे आसपास बिल्डिंग्स नहीं है, तो वहाँ पे सही है मेकआउट। So I hope juniors are noting this down. Your first all-nighter. कई बार ऐसा हुआ कि हमारी मीटिंग्स मतलब कभी कभी 3-4 बजे तक चलती थी, सीनियर्स के साथ मीटिंग, या फिर ऐसा होता था कि 15 अगस्त को हमें परफॉर्म करना है नुक्कड़ नाटक, तो अपन ऐसे ही अगले डे या फिर हमारे पास 2 से 3 दिन होता था रेडी करने के लिए, तो उस दिन उसमें ही हमें सब कुछ स्क्रिप्ट रेडी करनी है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ करना होता, तो वैसा हुआ था। शायद नुक्कड़ नाटक के लिए हम प्रैक्टिस कर, तो वही रहा। Now the next question, your professor in the college, if any. ये काफी मुश्किल है। मैं वैसे प्रोफेसर को नाम नहीं लूंगा जो मुझे पढ़ाए हैं। मैं वैसे प्रोफेसर का मैं बोल सकता हूँ जिनके साथ मैं काम किया हूँ, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी बन के या फिर कैसे भी काम किया हूँ, तो वो मैं बोल सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारे एडीन एकेडमिक है अभी, तो वो काफी सपोर्टिव रहे हैं, मतलब हर चीज Okay. स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को काफी अच्छे से समझते हैं, जो हमारा कंसर्न होता है सुनते हैं, बात होती है। तो मैं वो बोलूंगा सुब्रता सर जो एडीन एकेडमी, हाँ ये भी हमारे डायरेक्टर थे पुष्पक भट्टाचार्य, तो उनके साथ मेरा काफी अच्छा बनता था, बहुत सही उनकी। मैं एक बार ऐसा होता कि मैं टीचर्स डे के दिन मैं एक पोएम रिसाइट किया, तो पोएम कॉम्पिटिशन था, तो उन्हें पोएम काफी पसंद आ गया। तो ऐसा हुआ कि वो मुझे जानते नहीं थे, नाम से नहीं जानते थे, तो उन्होंने डीन स्टूडेंट अफेयर्स को मेल लिखा कि जो बच्चा पोएम रिसाइट किया था उससे हमें एंकरिंग करानी है इस साधना दिवस जो होता था गांधी जयंती के दिन पे। हाँ, तो उन्होंने मेल किया डीन स्टूडेंट अफेयर्स को कि वो बच्चा को बुलाइए, और डीन ने वीपी को मिलकर आशीष राजभैया को आइडिया था, मैंने बोला था, तो आशीष राजभैया मुझे बोले ऐसा क्या कर दिया, तो मैं डायरेक्टर याद करता है। तो फिर मतलब उनसे बात हुई, तो उन्होंने कुछ दिया, तो मैं और श्रेया दोनों मिलकर किए थे, एंकरिंग किए थे साधना दिवस पे। फिर ऐसा हुआ कि फिर जो सर थे कभी कभी वो मुझसे वो कराते थे, उनके कुछ स्पीचेस थे जो 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को उनको स्पीच देनी है हिंदी में, तो इंग्लिश में लिखते थे और मुझसे हिंदी में ट्रांसलेट कराते थे। तो ऐसा था, और एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने फैमिली के साथ डिनर पे मुझे इनवाइट किए, तो ये काफी सही था। और मुझसे वो मुझसे वो मुझसे पोएम्स भी सुने थे, अपने भी कुछ कुछ जो उन्होंने लिखा था अपने टाइम, वो भी मुझे हाँ. तो उनसे काफी अच्छी बनती थी। Okay, that's great. ठीक है. The next question, most annoying college mate. कौन हो सकता है, सोचना पड़ेगा यार, ऐसे रैप पे और आप तो अब घर पे, तो वो आके मारेंगे भी नहीं, तो बता सकते हो. मतलब एनोइंग कोई ऐसा नहीं है, वो होता नहीं जो आके ऐसे फालतू सब कर रहा है बीच में, बिना मतलब आके बोल रहे हैं अरे यार पता है ऐसा हो गया, मुझे सुनने का कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, फिर क्या होता है, तो वो सब थोड़ा एनोइंग लगते हैं। तो ऐसे 3-4 हैं, नाम लेना सही नहीं। वैसे मतलब मैं एक से वैसे कई बंदे थे जिनका मैं नाम ऐसे सेव करता था,
जैसे मान लो नाम है कुछ, तो मैं पीछे लगा के मैं सेव किया ये ऐसे करके नाम ऐसे करके। तो वैसे ओके। 2-3 लोग थे। फिर धीरे-धीरे मान लो उनका थोड़ा बिहेवियर अच्छा, तो मैं उनका नाम से हटा के मैं उनका जो नाम है वो मैं और मैं उनको बताता था, देख मैं नाम ऐसे सेव किया हूँ और तेरा जब बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा मैं हटा दूँगा। Um, okay, the next question is one person from your batch you think will be a billionaire in the future. सोचने दो यार। आज के टाइम पे बिलियनियर बनना तो यही कर सकते हो, या तो तुम सीईओ बन रहे हो किसी बहुत बड़ी कंपनी के, या फिर अपना स्टार्टअप खोल रहे हो और बीच में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि एकदम फोड़ू स्टूडेंट कोई आपके बैच का? ऐसा ये मैं कह सकता हूँ, लाइक राहुल ग्रोवर है, तो वो काफी सही है एकेडमिकली, बहुत सही है। बाकी नॉर्मल स्किल्स जो भी है उसके जो चाहिए, तो वो भी काफी सही है, तो मैं राहुल ग्रोवर बोल सकता हूँ। ओके। और है कई कई ऐसे बंदे जिनमें मतलब पोटेंशियल बन सकते हैं। ओके, तो वो कुछ सालों बाद आपका ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो पक्का आपको याद करेंगे, दुआओं में याद हाँ रखेंगे आपको। हाँ, ठीक है, मैं और भी नाम ले लेता हूँ, ठीक है, मैं और भी नाम ले लेता हूँ, क्या बताऊँ, ज्यादा दुआएं मिले मुझे। हाँ ठीक है, और भी मेरे बैच से और कौन बन सकता है, और ट्रेनर बनना, मैं बोलता हूँ शुभांकर अमिताभ जो है, काफी अच्छा बंदा, वो बन सकता है, जो पोटेंशियल है। और अर्श महाजन बन सकता है, चंदन भी बन सकता है, हाँ चंदन में पोटेंशियल है, चंदन भी बन सकता है। और भी कई ऐसे बंदे हैं जैसे कि ये विभोर हो गए, जो मतलब ये मैनेजमेंट पे ज्यादा काम किए, वो वो लोग काफी बन सकते हैं, विभोर हो गए, फिर हितवर्धन जैसे लोग वैसे बन सकते हैं। या फिर जिनका एकदम ओरिएंटेशन है, एक भवानी सुष्मिता बन सकती है, अभी आई है, मैं अहमदाबाद जाए। और भी मैं नाम ले लेता हूँ। मेरा दोस्त है अमित प्रियंकर, वो बन सकता है। आर्य, मेरा दोस्त आर्यदास वो बन सकता है यार। एक नाम ही आ रहा था पहले याद, अब आप तो मुझे दुआ चाहिए ना बाद में। सही बात है, सही बात है। तो लिस्ट खत्म हो गई है भैया, या फिर और ऐड करना खत्म आप? हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। So, coming to the final question of the rapid round, some your college experience using one song. ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है यार, मैं जो फॉर्म दिया था उसमें मैं सोच नहीं पाया। कोई बात नहीं, एट द मोमेंट एकदम आप सोचिए और पहला गाना जो दिमाग में आ रहा है। ये मैं कॉलेज लाइफ को अगर ये कह सकता हूँ, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत का है ना ये कि-। अच्छा, कॉलेज लाइफ के लिए हाँ कॉलेज लाइफ के लिए। पक्का? अभी दिमाग में मेरे यही है, मे भी चेंज हो सकता है थोड़ी देर में, या मैं अच्छे से सोचूं तो हो सकता है, अभी नहीं दिमाग में नहीं, यही है। मतलब पक्का कि कॉलेज लाइफ के लिए ये गाना है या किसी और के लिए? नहीं नहीं, ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ के लिए, ऐसा नहीं किसी। ठीक है। हाँ। सो नाउ दैट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, हम सब जानते हैं कि आपका राइटिंग में स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट रहा है, along with so many other things that you have told us today. एंड आपने काफी बार परफॉर्म भी किया, जैसे आपने अभी बताया कि टीचर्स डे पे आपने पोयम रिसाइट की थी एंड डायरेक्टर सर तक इम्प्रेस हो चुके थे। मेरा जो बेस्ट मेमोरी अबाउट योर परफॉर्मेंस ऑफ योर परफॉर्मेंस वाज इंटर आईआईटी कल्ट में 2019 वाला। सो उसमें आपने एक पोयम बोली थी, हिंदी वाली। सो सिंस दैट यू आर सो मच इनटू राइटिंग, आप आज हमें कुछ सुना सकते हैं, आपकी कोई शायरी, कोई पोयम या फिर एनीथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? लाइक मैं ऐसा भी लिखता हूँ, मैं रोमांटिक भी लिखता हूँ, मैं कुछ कुछ ऐसे लाइफ पे भी लिखता हूँ, या फिर कोई कोई ऐसा इंसिडेंट होगा वैसा लिखता हूँ, तो कैसा बोलना सही रहेगा। जैसा आपका मन करे। मैं एक वो, ठीक है, मैं ये पोएम मैंने लिखा सेकंड ईयर में, और इसका टाइटल अंतर्द्वंद। ये मैंने लिखा था मतलब ऐसे मोमेंट पे, जैसे होता है ना कॉलेज में आने के टाइम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है तुम्हारा, कि तुम मतलब पहले से पढ़ा हुआ होते थे ना सब 12th तक, और हाँ। उसके बाद तुम ऐसा मोमेंट पे हो जब तुम पढ़ नहीं रहे हो, और ना ही तुम ऐसा तुम्हारा मतलब आगे का कुछ ऐसा प्लान फिक्स नहीं है क्या करना क्या नहीं। तो वैसा था सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर में अक्टूबर या फिर सितंबर का, आई गेस। तो उस टाइम पे मैंने लिखा था ये चीज। तो मतलब ऐसा तो नॉर्मली कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इमोशन आते रहते हैं, कभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। तो वैसा एक हाँ। थोड़ा सा लो मोमेंट था, तो मैंने उस टाइम पे ये लिखा था, टाइटल है अंतर्द्वंद। तो ये ऐसा था कुछ, मुझे शौक नहीं किसी कहानी का नायक बनूं, ना ही ऐसी ख्वाहिश है किसी के सामने मेरा जिक्र हो। मुझे शौक नहीं किसी कहानी का नायक बनूं मैं, ना ही ऐसी ख्वाहिश है किसी के सामने मेरा जिक्र हो। आग के लपटों से उठते धुएं में इस जहां को कांपते देखा है मैंने।
आग से उठते लपटों में इस जहां को कांपते देखा है मैंने। बस उन लपटों में जब मिलूं तब दूर खड़े कुछ लोग हों जिन्हें मेरी थोड़ी फिक्र। रात के अंधेरे में अकेलेपन को समेटकर चल पड़ा हूं एक अज्ञात गंतव्य के आस। कुछ अंतर्द्वंदों से अभी लड़ रहा हूं उन अनगिनत सवालों के जवाबों की तलाश में। जिंदगी के कुछ फैसलों पे संदेह है मुझे, औरों से नहीं पर खुद से ही अवरंज है मुझे। मैं हूं जो आज या जिस खुद को ठुकरा दिया उनसे बेहतर तो हूं। सोचता हूं ढूंढूं इस कशमकश के मायने, या खुद को थोड़ा और वक्त दूं और खुद को मैं साबित करूं खुद के ही सामने, खुद के ही सामने। ये था। ओ माय गॉड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। बहुत बहुत ही बढ़िया, एंड आई होप बहुत लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे इस पोएम से। एंड मुझे तो हाँ ऐसा वही लगा सबके कि लाइफ में, हाँ, हाँ भाई सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब एवरी तुम अपने लाइन पास के इज डिसीजन को थोड़ा डाउट करो। एंड कॉलेज लाइफ में तो ये आता ही है बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम योर होम। मतलब घर या पे एकदम अच्छा माहौल होता है, सब फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, सब होते हैं, देन सडनली यू आर इन योर हॉस्टल ऑल अलोन। एंड फिर और उसके कॉलेज साथ लाइफ ही ऐसा होता है ना कि मतलब जहाँ पे बच्चे मतलब फर्स्ट टाइम आई गेस डिप्रेशन फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरे केस में तो ऐसा हुआ, मैं मुझे मालूम नहीं था डिप्रेशन क्या होता था। मुझे लगा ऐसे ही कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा तो लोगों से डिप्रेशन बोल, तो ऐसा मुझे लगता था पहले 12th तक। बट फिर कॉलेज में आके फील होता है हाँ यार डिप्रेशन है सही चीज। राइट, वी वर ग्लैड टू हैव यू हियर भैया। एंड on that note, thanking you for joining us today. It was great having you on our podcast. और हम चाहते हैं कि आप, जैसे आपने कॉलेज में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, एंड आपके बैच पर, आपके जूनियर्स पर, हो सकता है इवन सीनियर्स पर आपने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 3 months आपने जो कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, दैट होल्ड्स अ बिग प्लेस इन ऑल आवर हार्ट्स. So we would really like to thank you and wish you best luck for your future. एंड वी होप कि आपके साथ ऐसे इंटरेक्शंस आगे भी होते रहे, तो आप हमारे लिए टाइम निकाल लीजिएगा कभी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच विजय फॉर इनवाइटिंग मी। और जितने भी जूनियर थे फर्स्ट ईयर के वो काफी सही काम कर रहे हैं, लाइक अशफाक जिसने ये इनिशिएटिव लिया काफी अ, सही है ये। और मतलब आई एम ग्लैड दैट जूनियर्स इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन मतलब सीनियर्स का एक लिमिटेड इंटरेक्शन है फिर भी जूनियर्स इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काफी सही है। और ऐसा ही आगे चलता रहे। और आई होप कुछ दिनों में ये कोविड का सीन थोड़ा बेटर हो और जितने भी जूनियर्स उनको मौका मिले कॉलेज में आने के असली कॉलेज लाइफ क्या है उसे थोड़ा फील करने का मौका। हाँ भैया, अब आपने इतना सब कुछ बता दिया ना कॉलेज लाइफ के बारे में कि इनको पक्का जल्दी से जल्दी भाग के आने का मन कर रहा होगा कि बस हमें कॉलेज भेज दो. So thank you भैया for sharing all your experiences with us. And so that was it for today, guys and girls. We will soon see you in the next episode with another brilliant personality from IIT Patna. Make sure to follow us over here and on our Instagram and Facebook handles to get updated. Do let us know whether you liked our podcast and give us any feedback that you have. Till then, stay home, stay safe, and be happy.